Hello students, in this video lecture we will understand class 12 matrices exercise 3.3, how to transpose a matrix and add and subtract that. I am taking question number 1. That is, find the transpose 5 1 upon 2 minus 1. We have to find the transpose of the given matrix. In the last video lecture, we have understood how to transpose a matrix. Let's transpose it. Let we have the name of matrix is A, then A dash will be, this column will be transposed into first row, that is 5 1 upon 2 minus 1. मैंने कॉलम की जो वैल्यूज थी उनको रो में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास ए डैश अवेलेबल हो गया. दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Similarly, you can do question number 2nd and 3rd. If I write question number 3rd, then it will be minus 156 root 356 2 3 minus 1. This is the question. Then if I transpose this matrix, then first row, अब रो को कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉलम को रोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है कोई सा, चाहे आप सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या सारे कॉलम्स को आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए. तो आई एम कन्वर्टिंग रोज इनटू द कॉलम्स. तो -156 दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम. देन रूट 356 root 356 2 3 minus 1 2 3 minus 1. This is the transpose I have given a matrix A. Okay, let's do some more questions. We just take question number 4. That is, this is our question number 4. If A dash is equals to this and B is equals to this, then we have to find A plus 2B whole dash. Some previous questions are there. Question number 2 and 3 आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो हमने ट्रांसपोज का मेथड पढ़ा है इस तरह से, और ये क्वेश्चन भी आपको उसमें हेल्प करेगा. फर्स्ट हमें a प्लस 2b चाहिए. फर्स्ट अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमें a प्लस 2b चाहिए, तो उसके लिए हमें a फाइंड करना पड़ेगा. राइट नाउ वी आर हैविंग a डैश. सो a डैश का जब हम डैश फाइंड करते हैं, लेट्स डू a डैश इज इक्वल टू -2 1 3 2. ए डैश जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास अवेलेबल हो और अगेन हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स चाहिए होती, तो हम अगेन उसका ट्रांसपोज कर देते हैं. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल मैट्रिसेस. सो ए डैश को डैश हमने किया तो हमारे पास डैश डैश विल बी ए, सब नॉर्मल एक में कन्वर्ट हो जाएगी हमारा. दैट -2 3 एंड 1 2 हमारे पास a अवेलेबल हो गया. Now we have to find a plus 2b dash. Then first we find a plus 2b. A plus 2b will be a minus 2 3 1 2 plus 2 into b. तो यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका मल्टीप्लाई हम अपनी मैट्रिसेस में करेंगे, देन उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. -1 1 0 2. अब आप यहाँ देखेंगे -2 3 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया हमने इनसाइड, दैट इज -2 2 0 4. ये हमारे पास मैट्रिसेस अवेलेबल है. नाउ जैसा कि हमने 3.1 एक्सरसाइज में देखा था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं. इट मींस -2 प्लस -2 इन द सेंस -2 1 plus 0 3 plus 2 and 2 plus 4, that is -4 3 1 and 5 6. This is our answer for a plus 2b. Now we have to find a plus 2b dash. Then a plus 2b dash, then the answer will be transposed. It means
-4 1, that is -4 1, these row will be converted into the column, and this 5 6 will be again this 5 and 6. So this is the answer of a plus 2b whole dash. Okay, let's take one more example in this exercise. Now this is our question number 7. In this we have to check this matrix is a symmetric matrix and this matrix is a skew symmetric matrix. So by the definition of symmetric matrix, we know that a matrix which have A is equals to A dash. It means A is equals to A dash, that is known as symmetric matrix. So we just convert our matrix into A dash or take a transpose. -1 1 -1 5 1 -1 5. Again these row will be converted into the second column, -1 2 1 -1 2 1, and these row again will be converted into the column 5 1 3 5 1 3. Now if we check both the matrices, then again they are looking same. It means we have A is equals to A dash. Then we can say that it is a symmetric matrix. Similar, if we convert this matrix into the transpose form, that is A dash, it will be 0 1 -1 0 1 -1 and -1 0 1 -1 0 1 and 1 -1 0 1 -1 0. This is something different from the original matrices, but if we take -1 common, then 0 1 1, this will be -1. माइनस हम कॉमन लेंगे तो सिंपल सी चीज है, जहां माइनस है वहां से हट जाएगा और जहां माइनस नहीं है वहां माइनस अप्लाई हो जाएगा. दैट इज 0 0 1 and 1 -1. Sorry, why it is -1? This is our matrices 0, यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ माइनस लग गया. अब हम देखें तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है सिमिलर टू ए है, यानी कि हमने जो ए डैश फाइंड किया है दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू ए. ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हमको. मतलब हम कह सकते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, now question number 10. In these we have to express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. हमें जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिसेस है इसे स्प्लिट करना है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लिखना है. सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश. अगर और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश. ए इज इक्वल्स टू हाफ a plus a dash. A, that is 6 minus 2 2 and minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 plus. अब यहीं पर हम इसको a dash फाइंड कर रहे हैं, that is यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम अप्लाई कर देंगे, that is 1/2. 6 minus 2 2 6 minus 2 2 and -2 3 minus 1 2 minus 1 3 2 minus 1 3. ये हमने यहाँ पर फाइंड किया.
फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट फिर अगेन कर लेंगे। 1/2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, दैट इज 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 -2 + 2 4 and -2 -2 again -4 3 + 3 6 -1 + -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6. If we divide by 2 in these matrices, then it is each element will be divided by 2. So 12/2 -4/2 4/2 -4/2 6/2 -2/2 and 4/2 -2/2 and 6/2. So finally your symmetric matrix will be 12/2, that is 6, -4/2 -2 2 and -2 6/2 3 -1 and 4/2 2 -2/2 -1 and 6/2 is 3. These part is a symmetric matrix. Let's solve second part. Second part को हम solve करते हैं अगर, तो हम यहाँ देखते हैं, मैं अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले आंसर को यहाँ लिख लेता हूँ, देन रब करके अगेन हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। नाउ मैंने यहाँ अपना जो आंसर आया उसको यहाँ लिख लिया है। अब मैं 1/2 a - a डैश को सॉल्व करता हूँ, तो हाफ a - a डैश दैट इज हाफ a हम राइट करते हैं 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ट्रांसपोज देखें अगर, तो दैट इज 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। corresponding element will be subtracted here because of minus 6 - 6 0 -2 -2 that is +2 -2 + 2 0 2 -2 again 0 -2 and -2 that is -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 minus +1 that's why 0 1 minus +1 that is 2 - 2 0 -1 -1 again 0 3 - 3 0. Okay, if we divide 2 in each 0, then it will be not any kind of difference here. 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0. Now if we write the answer is a is equals to half into a plus a dash and plus half into a minus a dash, then it will be simple. यानी कि हमने A वाली मैट्रिसेस को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी हमारे पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 and plus 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0। अब हमने हमारी जो मैट्रिसेस को है दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। दिस विल बी द आंसर। ये हमारी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाली होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप 3.3 के अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।